In the earlier lecture, we have discussed about the organic acids, carboxylic acids. The acids were the species which are able to furnish H positive ion in the solution. Those are termed as the acids. Any group that is electron withdrawing in nature, it enhances the acidity of the acid or strength of the acid, and any electron donating group if present that decrease the acidity of the acids. Regarding the aromatic acids, benzoic acid I mean to say, that we have discussed that all ortho derivatives are stronger acids irrespective of the nature of the group which is present at the ortho position. Whenever there is a presence of a group at the para position, then by resonance it decreases or it increases the strength of the acid. If it is electron withdrawing group, it will increase the acid strength, or if it is electron donating group, then it will decrease the acid strength as it is present at the para position. At meta position, there is little bit effect of the you can say inductive effect that sometimes enhances the acidity of the aromatic acids. Now organic bases. What are organic bases? Organic bases are those which are able to donate a pair of electron to any acid, that is termed as the organic base. जैसे अमीन्स हैं, अमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एसिड को डोनेट किया जा सकता है. दैट इज वाई इट इज ए लुईस बेस. क्या बोलेंगे इसको? लुईस बेस बोलेंगे. इन द सिमिलर सेंस the NH2 group which is present over benzene, it is known as the aniline. Again the pair of electron it is present over the nitrogen that can be donated. So these are the organic bases. There are so many organic. Water can also act, but water is not a organic material. It is a inorganic in the sense. Mostly we discuss amines for the purpose of the base. Now let us discuss various amines. दिस इज ए 1 डिग्री अमीन. डिग्री कैसे लिखते हैं? नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली लिंक्ड है उसके अकॉर्डिंगली डिग्री आती है. फर्स्ट में जो नाइट्रोजन सिंगल कार्बन एटम से लिंक्ड है तो इसको 1 डिग्री अमीन बोलेंगे. यहां नाइट्रोजन डायरेक्टली जो 2 कार्बन से अटैच्ड है इसको 2 डिग्री अमीन बोलेंगे. यहां नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अमीन बोलेंगे. So here we are having 1 degree amine, 2 degree amine and the 3 degree amine. Now what about the basicity of these compounds? Whenever we are discussing the strength of any component, how much reactive it is, if it is more reactive in the sense when charge is concentrated over particular atom, but it is more stable when charge is delocalized. What is meant by charge here? Here is a presence of the electrons. If electrons they remain on nitrogen, it means it will be more reactive, it will be available for any acid. And if it is delocalized from here, then it will be a weak base. तो अगर वो चार्ज या वो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर रहते हैं तो किसी भी इनकमिंग एसिड्स के लिए अवेलेबल होंगे. तो इसका मतलब चार्ज या इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे होना जरूरी है. नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक इफेक्ट आ रहा है, उसको बोलेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट में यहां क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर से एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. इट मीन्स एल्काइल ग्रुप इज गोइंग टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द नाइट्रोजन. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी नाइट्रोजन के अराउंड, उतना ज्यादा वो बेसिक कंपोनेंट होगा. तो अगर मैं इसको अमोनिया के साथ कंपेयर करना चाहूं, देन दिस अमीन इज मोर बेसिक देन द अमोनिया. अमोनिया में क्या होगा? तीनों हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होती हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है.
So alkyl group is electron donating in nature. It means it will increase the basic character of the amines. तो 1 डिग्री अमीन में हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो यहां एक एल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन के ऊपर। 2 डिग्री अमीन में 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। और 3 डिग्री अमीन में आपके पास कितने हैं, 3 ग्रुप हैं, यहां पर 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसकी बेसिसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर बहुत ही जनरल सेंस में डिस्कस करना हो तो बेसिसिटी जो है दैट इंक्रीजेस, इट मीन्स it is 3 degree amine that should be more basic than the 2 degree amine and then the 1 degree amine. So general order can be it is 3 टर्शियम अमीन जो है ट्राई मिथाइल अमीन, ये ज्यादा बेसिक होनी चाहिए बजाय कि डाई मिथाइल अमीन से या सिंपल मिथाइल अमीन से। पहले तो है कि अमोनिया और अमीन का कंपैरिजन करते हो तो अमोनिया जो है वो लेस बेसिक है, अमीन ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि उसमें एल्काइल ग्रुप लगा, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नाइट्रोजन के अराउंड इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली जो है वो किसी एसिड को डोनेट किया जा सकता है। लेकिन अगर एक्चुअल ऑर्डर देखा जाए तो 2 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होती है, 1 डिग्री अमीन कम बेसिक होती है और 3 डिग्री अमीन जो मिनिमम बेसिक करैक्टर आ रहा है। तो जो मैंने डिस्कस किया ये उसके बिल्कुल क्या हुआ, कॉन्ट्रेरी हुआ। क्या हुआ ये, उससे बिल्कुल ये उल्टा है। वैसे तो क्या आ रहा है, 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन द 1 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स। लेकिन एक्चुअल जो है वो हमारे पास क्या है, 2 डिग्री दैट इज मोर बेसिक देन द 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन द 3 डिग्री। एक्चुअली देयर इज ए स्टीरिक फैक्टर आल्सो अवेलेबल। स्टीरिक फैक्टर में देखो ये फर्स्ट डायग्राम जो है, इसमें जो डार्क ब्लू कलर से वो नाइट्रोजन है, तो इसके साथ 2 व्हाइट बॉल्स नजर आ रहे हैं, सो इट मीन्स इट इज NH2 ग्रुप। और जो लाइट ब्लू या ग्रीनिश ब्लू कलर है उसमें जो 3 हाइड्रोजन है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, इट इज ए मिथाइल अमीन। तो मिथाइल अमीन में इतनी ज्यादा क्राउडिंग नहीं है, ठीक है। क्राउडिंग का मतलब है कि जो लोन पेयर नाइट्रोजन डार्क ब्लू कलर के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इजिली अवेलेबल होगा, किसके लिए, इनकमिंग एसिड के लिए। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन में 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, बीच में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ नीचे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो इट, आई एम गोइंग टू शो यू। दिस इज मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा ये CH3, इसी तरह से ये CH3 आ गया, ये N और H है। तो अगर इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर के लिए कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं यहां पर, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, तो इनकमिंग एसिड के लिए रास्ता नहीं है अटैक करने के लिए। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम, स्टीरिक क्राउडिंग बोलेंगे। क्या हो गई है, स्टीरिक हाइंड्रेंस या स्टीरिक क्राउडिंग, जिसकी वजह से लेस अवेलेबिलिटी होगी किसकी, लोन पेयर की। बट अबाउट द 3 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन है, तो इस 3 डिग्री में अमीन में कितने आ गए, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सेंट्रल में नाइट्रोजन है, तो लोन पेयर को अप्रोच करने के लिए जगह कम बचेगी। अब वैसे तो देखने से आप बोलोगे कि सर इसमें तो काफी स्पेस नजर आ रही है। स्पेस नजर आने का मतलब नहीं है, ये तो एटम दूर दूर सो किए हुए हैं, अदरवाइज एटम्स आर मच क्लोजर टू द ईच अदर। So there is more steric hindrance in the 3 degree amine. There is less steric hindrance in the 2 degree amine. There is minimum steric hindrance in the 1 degree amine. तो दोनों फैक्टर्स को अगर आप कपल करते हो तो आपके पास जो है क्या आता है, 2 degree amine that is more basic than the 1 degree amine than the 3 degree amine. There is one more factor that is acting here. It is solvation effects. सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट जो है कि जब अमीन जो है वो बेसिक एक्ट कर गई, उसके बाद क्या सॉल्यूशन में वो आयन स्टेबलाइज होगा या नहीं होगा। तो जब भी मिथाइल अमीन या इथाइल अमीन जो भी है वो बेसिक एक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन को ग्रैस्प करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं मैं यहां पर, इसको पहले ये एरो को छोड़ दीजिए, इट इज CH3NH2, CH3NH2। एसिड H पॉजिटिव आयन से अटैक हुआ तो ये क्या बन गया, अमोनियम आयन की तरह बन गया, 1 2 3, और मिथाइल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको H बोलो तो क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उसी तरह से ये क्वाटनरी नाइट्रोजन होगी, तो इस मीन्स इट हैज एक्टेड एज एन बेस, ये बेस एक्ट कर चुकी है। अब ये जो आयन बन गया, ये आयन क्या सॉल्यूशन में स्टेबलाइज होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए वाटर ही आपको लेना पड़ेगा स्टेबलाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट हम नहीं ले सकते हैं। क्यों, ऑर्गेनिक कंपोनेंट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम आता है, जबकि वाटर में जो है प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो वो आयंस को डिसॉल्व कर लेता है। इसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं, 3 हाइड्रोजन जो है वो पानी की जो ऑक्सीजन है उसके साथ बॉन्ड बना सकती है, तो दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगी। तो मिथाइल अमीन की स्टेबलाइजेशन ज्यादा है क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ये 2 डिग्री अमीन है, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। और अगर 3 डिग्री अमीन को देखा जाए तो इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अमीन को स्टेबलाइज करता है, कितना, 1। सो व्हेन यू चेक द प्राइमरी अमीन, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 वाटर, सेकेंडरी अमीन इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द 2 वाटर मॉलिक्यूल, एंड 3 डिग्री अमीन इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो इन तीनों फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करते हो, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टीरिक फैक्टर एंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स, देन वी कम अक्रॉस दैट 2 डिग्री अमीन इट इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री अमीन, इट इज मोर बेसिक देन द 3 डिग्री अमीन। इट इज नॉट रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी, इट इज द बेसिक स्ट्रेंथ। 2 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होती है, उसके बाद 1 डिग्री की वारी आएगी, उसके बाद 3 डिग्री की वारी आएगी। सो दैट इज द एग्जैक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिसिटी ऑफ द अमीन्स। दिस क्वेश्चन कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन। नाउ लेट अस कंपेयर सम अनदर कंपोनेंट्स, मिथाइल अमीन एंड द एनिलीन। ये कंपोनेंट एनिलीन है। पहले बात हुई कि लोन पेयर अगर इनकमिंग एसिड के लिए, इनकमिंग एसिड का मतलब है कि जिस भी एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा उसके लिए अगर अवेलेबल है तो वो बेसिक हुआ, अगर नहीं अवेलेबल है तो बेसिक नहीं काउंट होगा। जब भी NH2 ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो बेंजीन के ऊपर जो वो रेजोनेंस पॉसिबल है। तो सी हियर, जो लोन पेयर है दैट इज रेजोनेटिंग विद द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। तो ये बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस से जो है वो दिस बॉन्ड इट इज दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज एंटरिंग हियर फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, सो पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन, लेकिन इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो इसलिए बॉन्ड आपको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। देन नेगेटिव चार्ज एंटर्स हियर, दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर। इसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो वो लिखी जा सकते हैं। अब आपने एक एनिलीन के लिए जो है वो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो लिख ली, तो इसका मतलब एक ही पहली स्ट्रक्चर है जिसमें लोन पेयर जो वो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, बाकी सेकंड में नहीं बचा, थर्ड में नहीं बचा, फोर्थ में नहीं बचा। तो 1/4 टाइम के लिए जो है वो लोन पेयर जो वो नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल है। इट मीन्स if you compare it with the methylamine, it is very less basic in nature than the methylamine, because lone pair it is involved in the resonance, it is delocalized। तो delocalization जो वो stability देता है ना कि reactivity देता है। क्या देता है वो, stability ना कि reactivity। so lone pair is not present, it is less basic। on the other hand, in methylamine there is a presence of the lone pair over nitrogen, methyl group they are having plus I effect, so that is going to concentrate the electronic density on the nitrogen, so that is easily available for the incoming acid। लेकिन एनिलीन में इससे उल्टा है। एक और स्ट्रक्चर है यहां पर, दिस इज एसिटामाइड CH3CONH2, वेदर इट इज मोर बेसिक और लेस बेसिक। तो इसमें भी रेजोनेंस है,
ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एसिड के लिए अवेलेबल होना चाहिए ये यहां शिफ्ट हो रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड नेक्स्ट शिफ्ट हो गया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो पेयर which was already present here, now it is absent here, so it means again it is not available for the incoming acid. So this means acetamide, it is a weak base than the amine. Now let us discuss the aromatic amines. एरोमेटिक अमीन्स में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो प्रेजेंट होंगे वो उसकी जो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. जब हमने एसिड डिस्कस किए थे तो मैंने कहा ऑल ऑर्थो एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स रिगार्डलेस वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट. अमीन्स में उल्टा है, चाहे वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रो प्रेजेंट हो जैसा कि फर्स्ट में है ऑर्थो पोजीशन पे, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, दे आर वीकर देन द पेरेंट अमीन, तो एनिलीन से वीकर होंगे. जो एसिड्स है एसिड में स्ट्रोंगर केस आता है ड्यू टू फील्ड इफेक्ट्स बोलते हैं इनको, और बेस में जो क्या आता है वीकर इफेक्ट आता है. ऑल ऑर्थो डेरिवेटिव्स दे आर द weak bases in case it is aniline whether electron donating group is present or electron withdrawing group is present. एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में ये, तो केवल याद करने के लिए है. किस वजह से होता है ये, स्टीरिक हाइंडेंस की वजह से भी होता है और फील्ड इफेक्ट्स की वजह से भी होता है, लेकिन दोनों आपके सिलेबस से बाहर हैं तो उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है. लेट अस डिस्कस सम मोर स्ट्रक्चर्स हियर. दीज आर द पैरा डेरिवेटिव्स. तो पैरा डेरिवेटिव में मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, तो ये नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो दिस इज सप्लाइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड द नाइट्रोजन, सो दैट इज गोइंग टू एनहांस द व्हाट बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एनिलीन. ऑन द अनदर हैंड नाइट्रो ग्रुप इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, तो ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा. तो पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट होगा वो कहां आ जाएगा, बेंजीन की तरफ या नाइट्रो ग्रुप की तरफ आ जाएगा, तो वो अवेलेबल नहीं होगा. अगर अवेलेबल नहीं है इट मींस दैट इज ए वीक बेस. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है पैरा पोजीशन से जो है वो क्या करते हैं, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं विड्रॉइंग वाले, और डोनेटिंग वाले क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. अब बचती है मेटा पोजीशन. ये दो कंपैरिजन के लिए आपके पास एक मेटा नाइट्रो एनिलीन है, एक पैरा नाइट्रो एनिलीन है. नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन से रेजोनेंस कॉज कर सकता है. ऑलवेज रिमेंबर ऑर्थो और पैरा पोजीशन से रेजोनेंस ऑपरेट होता है. किससे, ऑर्थो और पैरा से. ऑर्थो उसने पहले ही आउटलाइन कर दी कि चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या होगा, वीकर होगा. बचा पैरा. पैरा से जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी किए जा सकते हैं. व्हाट इज द वे ऑफ दैट, इट इज रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे. तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए ये नाइट्रो एनिलीन क्या हुई, पैरा नाइट्रो एनिलीन वीकर हुई. लेकिन नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा से रेजोनेंस कॉज नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता है. सो दैट इज ए स्ट्रोंगर बेस और दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन. इट इज मोर देन द पैरा नाइट्रो एनिलीन. Remaining we will discuss in the next session.